Good morning, students. How are you? I hope you are fine. Nowadays, we are discussing properties of inverse trigonometry. Are you remember that? How many properties we discussed? Remember that? No. I revise. First of all, I revise these properties. Then do next work. First property. What is the first property of inverse trigonometry? First property, sine inverse of sine x equal to x. Sine inverse of sine x equal to x. When x belongs to in range minus pi by 2 to plus pi by 2. Similarly, for all these conditions satisfied. Second property, sine of sine inverse x equal to x. For this, that is the domain minus 1 to plus 1. Minus 1 to plus 1. Minus 1 to plus 1. Third, similarly for all the conditions, cos for cos inverse x, tan for tan inverse x, all the conditions satisfied. Third property, sine inverse of minus x equal to minus sine inverse x for all x belongs to domain minus 1 to 1. In minus properties, we remind that for cos inverse tan inverse cos inverse secant inverse and cot inverse, we get pi minus this. Cos inverse x for x belongs to domain, secant pi minus secant inverse x for x belongs to domain. What is the domain? Or what is the domain? This x belongs to minus 1 to 1. Sorry. Domain of this. What is the domain of secant inverse x? Right? My x belongs to r minus 1 to 1. What is the domain of this cot inverse? Pi minus cot inverse x. What is the domain of cot inverse? That is equal to real number. X belongs to real number. Okay. So, fourth property. What is the fourth property of this? Fourth property, tan inverse. Fourth property is sine inverse x plus cos inverse x equal to pi by 2 for x belongs to domain. Similarly, tan inverse x plus cot inverse x is also equal to pi by 2 for domain. Third property also satisfies this domain. Secant inverse x plus cosecant inverse x equal to pi by 2. Okay. Fifth. What is the fifth property? Fifth property is. What is the fifth property is? Yesterday we discussed root a square minus x square. We put x equal to a sin theta or a cos theta. Root x square minus a square. X equal to a secant theta or a cosecant theta. Root a square plus x square equal to x equal to a tan theta या a cot theta. Similarly, root a plus x, a minus x, x equal to a cos theta. That is the fifth property. Sixth property. What is the sixth property?
Are you remember that? What is the sixth property? What is the sixth property? Please remind, please. Tell me, anyone? What is the sixth property? The sixth property is this. Tangent inverse x plus tan inverse y equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. For denominator greater than 0, 1 minus xy greater than 0. 7. Tan inverse x minus tan inverse y equal to tan inverse x minus y upon 1 plus xy. For 1 plus xy greater than 0. 8. What is the 8th property? Tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z is equal to tan inverse x plus y plus z minus xyz up 1 minus xy yz zx. That is the 8th property. 9th property, sin inverse x plus sin inverse y equal to sin inverse plus minus sin inverse x root 1 minus y square plus minus y root 1 minus x square. Remember only this, not condition. Condition is not necessary for questions, because we have NCERT or elements, we have question we satisfy these properties. Similarly, 10th property, cos inverse x plus cos inverse y minus cos inverse xy plus minus plus root 1 minus x square 1 minus y square. We have discussed these properties. Now we are going to the next working. Next properties. Therefore, welcome again to the IAVM online classes. आपका IAVM online classes के अंदर फिर से स्वागत है बेटा. आप ये प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके थे. 10 प्रॉपर्टी आपको क्विकली रिवाइज किया है कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी रिवाइज की. ठीक है, आप डिस्कस कर लीजिए इनको. हमें इन 10 प्रॉपर्टी को, एक थर्ड प्रॉपर्टी आपकी बुक में वो मैंने नहीं की और ये मैंने अलग अपनी तरफ से की है. नेक्स्ट है, आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज 11. %99 बेटा आपके बिना कंडीशन से काम चल जाएगा, लेकिन जिसको कंपटीशन की तैयारी करनी है उसको सभी करनी पड़ेगी. आप देखिए बेटा, 11, उससे करने से पहले हमें +1 के कुछ फॉर्मूले रिमाइंड होनी चाहिए. जैसे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ sin 2x in tangent form? What is the formula of cos 2x in tangent form? Or what is the formula of tangent 2x in tangent form? Please tell the formulas. Then we forward the next step. ध्यान है क्या बेटा? sin 2x का tangent फॉर्मूला क्या आता है? हाँ, वेरी गुड, शाबाश. क्या था? sin 2x का फॉर्मूला आता है 2 tangent x upon 1 plus tan square x. cos 2x का होता है 1 minus x square upon में 1 plus x square. और tan 2x का होता है 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x.
और cos tan टू एक्स का होता है 2 tan टू एक्स अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ये एंगल हाफ में होता है बेटा, यहाँ पर 2 है तो हाफ में। अब इसी सेंस में हम अगले फॉर्मूले करने जा रहे हैं, तीनों को हम 2 tan इनवर्स x को चेंज करने जा रहे हैं। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, यदि हमें इसको साइन इनवर्स में चेंज करना हो तो साइन इनवर्स में ये आएगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी सेंस से बनेगा। यदि हमने प्रूव करना चाहे तो प्रूव कर एक्स tan टप कर देंगे, ठीक है। और कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर x की वैल्यू -1 to +1 के बीच में करेंगे, -1 to +1 के बीच में। ऐसे अगला है tan, हमारे पास क्या होगा भाई, cos 2x में है, ये आएगा cos इनवर्स, ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कंडीशन कब लागू होगी भाई, जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी। थर्ड tan इनवर्स, सेंस वही है बेटा, यहां पर tan की जगह पर 1 माइनस x कर दिया, यह आएगा 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर x आल्सो बिलोंग्स टू -1 to +1। तो ये तीन फॉर्म में याद करेंगे यहाँ पर, साइन इनवर्स में तो ये, कोस इनवर्स में ये, tan इनवर्स में ये। सेंस ऐसे याद करनी है आपको, जो हमने प्लस में पढ़ी उसी सेंस में होंगे, ठीक है भाई। अगला तो ये फॉर्मूला है 11, 2 tan इनवर्स को हम तीन वे में चेंज कर सकते हैं। ऐसे 2 sin इनवर्स x होता, 2 sin इनवर्स x होता हमारे पास, 2 sin इनवर्स x, 2 sin इनवर्स x है हमारे पास, sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x बिलोंग्स टू -1/√2 +1/√2। वही कंडीशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बिना कंडीशन काम चल जाएगा, लेकिन आपको कॉम्पिटिशन नहीं करना है, इसमें ध्यान रखना भी। फिर अब इसको कैसे करोगे, अभी बताया था √a² माइनस x स्क्वायर, तो क्या करेंगे, यहाँ पर x का साइन टाई या कोस टप कर देंगे हम, तो साइन टाई या कोस टप करोगे तो सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे कर लेंगे 2 sin इनवर्स x है, तो 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, इससे पहले आपको ध्यान हो, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या, sin इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप x गए यहाँ पर y लिख दें, तो y या सॉरी y से x लिख दो, 1/2 sin इनवर्स x हो जाएगा, तो x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। ओके ऐसे 2 cos इनवर्स x, अब 2 cos इनवर्स x होता है cos इनवर्स 2x square minus 1 when x belongs to 0 to 1 के बीच में लगेगा। ओके वही इसको भी आप वैसे वेरीफाई करते हैं अपन, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्या था, cos इनवर्स x y प्लस है तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स एक्स वाई प्लस तो माइनस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे ऐसे याद कर लो ना भाई, क्या होता है cos a cos b, ये तो दोनों सेम होंगे, cos a cos b हो गया, और रूट वाला अपोजिट होता है साइन का, इसके अंदर यहाँ पर अपन साइन रखेंगे तो इसको cos का काम करेगा रूट वाला, तो ऐसे करेंगे हम, नहीं ऐसा बेटा, ये भी यहाँ पर y से x दो तो हो जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट ये हो गई हमारे पास 12th प्रॉपर्टी हो गई। अब है 13, अब जो हम नजदीक बढ़ते जा रहे हैं, आपका काम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपको लर्न करना पड़ेगा। ये आगे हमारे पास क्या भाई, अब है 13 फॉर्मूला 3 sin इनवर्स x। तो 3 का करने से पहले हम
उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे क्या, साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3x का है ध्यान आपको, जो होता है 34 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। cos 3x का क्या होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। tan 3x का क्या होता है फॉर्मूला, तो 31 3 tan x माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस 3 10 स्क्वायर क्यूब x है क्या ध्यान आपको। तो ये हमारे पास फॉर्मूले हैं, इनको आप रिमाइंड करो। देखो बेटा 1 मिनट में आपको टाइम छोड़ दिया है, हो गया भाई, आगे बेटा। तो अब इसका करेंगे हम बेस्ड क्या भाई, साइन 3x का है, तो साइन 3x का आप देखो फिर फॉर्मूला याद करेंगे हम वो इसी सेंस में 3 sin इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x। अब 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइन इनवर्स वही 34 3x माइनस 4x क्यूब, ये लाई करेगा x माइनस 1/2 से प्लस 1/2। फिर वही कंडीशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, करो तो बेस्ट है, ना करो तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार 2-3 साल पहले ये आया हुआ था, को एनसीईआरटी क्वेश्चन है और मैंने कॉपी देखी थी, तो सीधा डायरेक्ट कर खत्म, क्योंकि ये कंडीशन लागू होती है पहले ही। अब इसको प्रूव कैसे करोगे, x से साइन टर्म कर दो, साइन टर्म, तो 3 sin था माइनस 4 sin थीटा, साइन थीटा जाएगा, साइन से साइन जाएगा, थीटा जब कर दिया। ऐसे 3 cos इनवर्स x, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x when x lie 1/2 to 1। ऐसे हमारे पास थर्ड है क्या, tan 3x है, 3 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स वही सेंस है बेटा 3x माइनस x क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर, वेयर x lies माइनस 1/2 3 प्लस 1/2। ये हो ये सारे हमने प्रश्न के फॉर्मूले पढ़े हुए थे उसकी सेंस में। फिर लास्ट ट्रिक है 14, क्या भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमने चेंज करना किसी में भी, जैसे साइन इनवर्स x है, इसको आप कोस इनवर्स में चेंज करना चाहते हैं, ये चेंज करना चाहते हैं आप कोस इनवर्स में, तो आप क्या कर लेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे, ट्रायंगल बना लिया अपने। अब यहां पर बेटा x है, साइन का अंदर क्या होता है पता हो, ध्यान हो, क्या होता है ध्यान हो। पंडित बद्री प्रसाद आदर बोले पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान आरा रहा है, ध्यान आपको। अरे परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना अपना हमारे पास x, हाइपोटेन्यूज कितना है 1, तो इसका बेस ले लो भाई, बेस कितना आएगा √1 - x²। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा बच्चे, आप कोस इनवर्स में चेंज करना है इसको, तो कोस इनवर्स में चेंज करोगे कैसे आएगा, कोस इनवर्स क्या आता है, कोस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और √1 - x²। किसी में भी चेंज कर सकते हो, किसको भी, किसी को भी किसी में चेंज कर सकते हो। यदि इसी को हमने कोड में चेंज करना होता तो कोड इनवर्स में क्या आएगा हमारे पास, क्या होता है कोड इनवर्स, बेस अपॉन परपेंडिकुलर √1 - x² अपॉन x। या इसी को हमने सेकंड कोसेकेंड में चेंज करना होता तो कोसेकेंड इनवर्स क्या होगा 1/x, उल्टा कर देंगे आप इसका। इसलिए मैंने थर्ड प्रॉपर्टी मेंशन नहीं की, क्योंकि हम इसी में सारा आ जाएगा। ऐसे मान लीजिए किसी और को चेंज करना हो, कोड इनवर्स x को चेंज करना है, इसे चेंज करना भाई tan इनवर्स तो इजीली हो जाएगा, हम सेकंड इनवर्स से चेंज करते हैं इसको। ठीक है, तो ट्रायंगल बनाए करेंगे हम, ट्रायंगल बना लिया हमने। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो x परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, इसके अपॉन कुछ नहीं तो 1, ये आ गया हमारे पास कितना है √1 + x²। और सेकंड इनवर्स क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस,
तो याद आएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स, तो ये चेंज हो गया, ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ऐसे हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं। बात समझ आई बेटा? तो ये हो गया हमारे पास। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, इनको आप देख लीजिए। इधर मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। इसमें आप सब आप देखो, आगे क्वेश्चन करते हैं हम। ये हमने बीच से छोड़ दिया था, स्किप कर दिया था, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी नहीं था कोई। अब सारी प्रॉपर्टी पढ़ चुके आप। तो ये अपने फोर्थ पार्ट है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर साइन वर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन रूट 2 है। अब इसको सोल्व करना है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर साइन वर्स है, तो अंदर भी यहाँ पर हम साइन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब साइन बढ़ाने की कैसे कोशिश करें भाई? पर ध्यान करो, ये प्लस माइनस का है, तो या तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा साइन ए प्लस बी, या साइन ए माइनस बी। और भी दोनों फॉर्मूला में पता है साइन ए कोस बी, प्लस तो प्लस और कोस ए साइन बी, अधिक माइनस होता ये माइनस होता है। तो इसी सेंस को हम ध्यान करेंगे। देखो बेटा, यहां पर क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन रूट 2 है। तो मैंने क्या कर दिया, साइन वर्स 1 बाय रूट 2 साइन एक्स, इसके सेपरेट अलग कर दिया, 1 बाय रूट 2 कोस एक्स अलग कर दिया। ठीक है, अब यहां पर है, अब ध्यान कीजिए बेटा कि भी 1 बाय रूट 2, यहां पर देखो हमें साइन में चाहिए, तो साइन ए, तो इससे पहले आप चेक कीजिए क्या 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर 1 आ रहा है? चेक कीजिए, 1 आ रहा है क्या? यस, 1 आ रहा है भाई। 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 करेंगे तो 1 आ रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री में किन का स्क्वायर सम 1 आता है? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। तो हमें एक की जगह साइन और एक की जगह कोस पुट करना है। इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हम पिछले एक्सरसाइज में। तो यहां पर अब हम किसकी जगह साइन पुट करें, किसी जगह कोस पुट करें? 1 बाय रूट 2 तो भाई क्या है, साइन 45 की वैल्यू भी होती है, कोस 45 की वैल्यू भी होती है। तो हम किसकी जगह पुट करेंगे? तो यहां पर उसके लिए हमने ये आइडिया लिया भाई, हमें क्या चाहिए, साइन चाहिए। तो साइन के साथ ये दोनों डिफरेंट है, यानी कि यहाँ पर साइन एक्स है तो यहाँ पर हमें कोस चाहिए। तो इट मींस ये हो गया साइन वर्स 1 बाय रूट 2 किसकी होती है, कोस के अंदर 45, तो साइन एक्स कोस पाई बाय 4 लिख दो, प्लस कोस एक्स 1 बाय रूट 2 किसकी होती है, साइन पाई 4। यो अब साइन वर्स क्या आएगा, फॉर्मूला देगा साइन ए प्लस बी, तो एक्स प्लस पाई 4, क्या है x प्लस पाई बाई 4। अब साइन वर्स साइन x इक्वल टू कब होता है x? भाई साइन वर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा कब होता है? व्हेन थीटा बिलोंग्स टू, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू क्या होता है बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी रेंज में, यानी माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। तो हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि कंडीशन दे रखी है। यदि कंडीशन नहीं होती तो हम सीधा लिख देते, कंडीशन दे रखी तो हमें चेक करना पड़ेगा हमें। तो चेक करते हैं हम, माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 चेक करो। तो यहाँ पर देखो भाई हमारा एंगल क्या, x प्लस पाई 4, तीनों में पाई 4 ऐड कर दो, तो पाई 4 ऐड कितना आएगा 0, x प्लस पाई 4 और ये कितना आएगा पाई बाई 2। क्या ये स्क्रीन तो लाइक कर रहा है जी? यस, लाइक कर रहा है भाई। तो लाइक कर रहा है तो वी कैन राइट दिस क्या, x प्लस पाई 4, यह आंसर लिख दो। सिंस क्या थीटा इक्वल टू, या सिंस x प्लस पाई 4 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। ओके, आगे समझ में भाई? कोई डाउट फिर पूछ लेना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कि भाई 4 tan इनवर्स 1 by 5
माइनस टेन इनवर्स 1/70 प्लस टेन इनवर्स 1/99, ये किसके इक्वल होगा? ये हमने देखना है। देखो बेटा, ये लेंथ की क्वेश्चन है सबसे ज्यादा, इसके लिए मैं ये साफ कर रहा हूँ। मेरा ये लिख लिया होगा आपने, राइट डाउन कर लिया होगा। एक मिनट रुक सकता हूँ मैं, राइट डाउन कर लो आराम से। पहुंचता अब तो आपके हाथ में, हमें यार कभी भी हमें तुम यूज कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो आप हमें, ये ऐसे स्टॉप हो गए तो कभी भी क्लास में तो नहीं बोल सकते, लेकिन कहीं भी हमें रिवाइंड करो, ऐसे फॉरवर्ड करो, आपकी चॉइस है। हम आपके हाथ के कठपुतली हैं, बटन है आपके हाथ में। हाँ भाई देखिए बेटा, लेंथी क्वेश्चन है। अब 4 tan inverse 1/5 minus tan inverse 1/70 plus tan inverse 1/99 equal to 5/4, तो लेफ्ट साइड लेते हैं। अब बच्चे यदि यहाँ पर 4 इज a simple 1 tan inverse होता तो tan inverse x प्लस tan inverse y, ये माइनस अंदर ले जाके tan inverse z हो जाता, तो tan inverse x प्लस tan inverse y प्लस tan inverse z का फॉर्मूला लगा देते। अब यहाँ पर बेटा tan inverse x प्लस tan inverse y प्लस tan inverse z नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर 4 tan inverse 1/5 है। तो आप क्या करेंगे भाई, पहले इसको 4 को आप सिंगल वन में लाएंगे। तो आज ही हमने फॉर्मूला पढ़ाया है क्या भाई, सिंस क्या 2 tan inverse 1/2 tan inverse x को हमने चेंज किया भाई किसमें भाई, देखो ध्यान दो शाबाश। 2 tan inverse x किसके इक्वल होता है? तो 3 के इक्वल होता है, अभी आज ही पढ़ाएंगे, साइन इनवर्स के भी, कोस इनवर्स के भी और tan इनवर्स के भी। लेकिन यहाँ पर आप tan इनवर्स में ही लाएंगे, क्योंकि कोस इनवर्स उसमें चेंज करके बोले क्यों देगा। और भी यह आएगा 2 tan inverse x को होता है tan inverse 2x upon 1 minus x square for all x belongs to -1 to 1। इसके पीछे लाई करता है, क्या लाई कर रहा है? क्या यस लाई कर रहा है। वैसे मैंने कहा ना 99% क्वेश्चन लाई करेंगे, तो आपको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास यह आएगा 2 tan inverse x, तो हमारे पास क्या लगा देंगे हम फॉर्मूला, tan inverse 2/5 अपॉन 1 minus 1/25 प्लस, अब यहां पर फॉर्मूला लगा देंगे हम tan inverse x minus tan inverse y का। तो क्या होता है tan inverse x minus tan inverse y का, ध्यान दीजिए, tan inverse x minus tan inverse y का क्या होता है, tan inverse x minus y upon 1 plus xy, where xy 1 plus xy greater than 0, xy greater than -1, यानी इनका मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए। तो -1 से बड़ा आएगा कि नहीं देख लेना, ठीक है। तो यहां पर बेटा आएगा, तो वही कर रहा हूं मैं, तो tan इनवर्स क्या देगा, x minus y, x कितना यहाँ पर 1/99 माइनस y, y कितना 1/70 अपॉन में 1 प्लस, ऊपर माइनस नीचे प्लस आता है 1/99 और इंटू 1/70। यार अब इसको सॉल्व कीजिए भाई, तो 2 tan इनवर्स क्या आ गया हमारे पास, क्या आ गया 2/5 इंटू, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे हम 25/24 प्लस, साथ ही साथ से चल रहे हैं ये इस टाइप पे चल रहा है, ये चल रहा है tan इनवर्स 99 और 70 एलसीएम लीजिए 99 और 70, तो 99 कैंसिल हो गया तो 70 आ गया, 70 कैंसिल हो तो 99 आ गया, अपॉन में 99 इंटू 70 प्लस 1 अपॉन 99 इंटू 70। आप क्या होगा बेटा, यहां से करिए 2 1 2 2 12 5 2 25, ये आ गया 2 tan इनवर्स 5/12 प्लस, बेटा यहां पर कीजिए tan इनवर्स
कितना आएगा माइनस का, कितना आएगा भाई माइनस का 20, ये देखो बेटा कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम कट जाएगा, ये आएगा tan इनवर्स माइनस का 29 अपॉन में 0 7 and 63 6 7 and 63 is 6 69 प्लस 1 आ गया भाई। अब 2 tan इनवर्स स्क्वायर बाय 12 ये तो एटी लिख दिया हमने, या इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 2 tan इनवर्स x का फ्री फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ये क्या होगा tan इनवर्स 2x 2 into 5 by 12 अपॉन में 1 माइनस 5 by 25 by 144 प्लस, अब इसका देखो बेटा tan इनवर्स माइनस का किसके लिए होता है, ध्यान करो भाई tan इनवर्स माइनस का किसके लिए होता है, tan इनवर्स माइनस थीटा या माइनस tan इनवर्स थीटा किसके लिए होता है भाई, थीटा के लिए होता है, व्हेन थीटा बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन क्या है रियल नंबर तो है ही भाई, आइडिया तो है ही, यहाँ पर आ गया ये माइनस tan इनवर्स 29 बाय 6931 या ठीक है। और इसको सोल्व कीजिए, tan इनवर्स कितना आ गया, थीटा देखते हैं हम 2 3 12 तो 5 by 6 into ये करो 144 में से ये माइनस करोगे तो 119 अपॉन में 25 सॉरी 144 माइनस, अब इसको देखो तक कैंसिल हो गई, ध्यान दीजिए भाई 29 1 जा 29 29 2 जा 58 कितना आ गया 11 है ना भाई, तो 11 और ये 3 द्वारा अब कितना जाएगा देखो 29 58 है ना, तो 9 में से क्या 1 6 में से अब किस में जाएगा देखो बेटा, देखिए 29 5 जा 5 9 जा 45 4 5 टू द 10 4 14 जाएगा क्या, नहीं जाएगा भाई, 4 से 4 9 जा 36 3 4 टू 8 3 11 जा रहा है क्या, नहीं जा रहा भाई, 4 से भी जा रहा 3 से जा रहा है, तो 3 आएगा तो क्या आएगा 29 3 जा 87 3 9 87 हो गया, तो 30 में 7 गया 6 और 10 में 7 गया 2, ठीक है। अब क्या आएगा बेटा 1 बता रहे हैं हम, ये 29 9 चल जाएगा 9 जा 81 चल जाएगा, तो किसका आ गया भाई tan इनवर्स 1 by 239। अब इसको सोल्व कीजिए भाई, क्या आएगा देखो, पता लग गया ना आपको क्यों बड़ा है, तो 5 किस में जाएगा देखो, ये मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी ये उल्टा कर दिया, 144 अपॉन में 119, तो 6 on the 6 6 to the 12 4 6 to the 24, तो tan इनवर्स 120 by 119 minus tan इनवर्स 1 by 239, या अब फिर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो ये कैसे हो क्या आएगा 1 आ देगा, वो क्या देगा पाई बाई 4, आप सोल्व कीजिए, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए भाई, हाँ बेटा अब क्वेश्चन और डिस्कस करने जा रहे हैं हम। देखो बेटा यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स में होता फिर तो सिंपल क्वेश्चन हो जाता, यानी अब ये cos इनवर्स में, तो पहले तो वही आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये 0 से ग्रेटर होना चाहिए, ये 0 से ग्रेटर होगा, यस होगा, दोनों पॉजिटिव है। तो देखो भाई आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तो क्या होगा हमारे पास tan इनवर्स 1/4 प्लस 2/9 अपॉन में 1 माइनस 1/4 इंटू 2/9,
सोल्व कीजिए तो tan इनवर्स कितना आएगा हमारे पास, 9 4 एलसीएम लोगे 36 आ गया। तो 4 9 36 9 प्लस 4 टू 8 अपॉन 36 माइनस 2 34/36। तो ये आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा हमारे पास 36 से 36 ये कैंसिल, 71 दा 70 72 दा 34, ये आ गया tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2। अब लेकिन बच्चे हमें प्रूव क्या करना है, 1/2 cos इनवर्स 3/5। अब tan इनवर्स को cos इनवर्स में चेंज करना है, तो tan इनवर्स को cos इनवर्स में चेंज करना होता तो खाली ट्रायंगल बना के कर देते हम, लेकिन इसके बाहर हमें 1/2 भी लाना है। जैसे इसमें देखो बेटा, इसमें करेंगे हम, ये क्वेश्चन भी स्टेप चाहिए, इसमें खाली साइन इनवर्स बनाना था हमने, करेंगे हम इसको, पहले ये करते हैं। तो इसमें हमने 1/2 भी लाना है, तो पहले 1/2 लाते हैं हम। कैसे करेंगे, यहाँ पर 1/2 से डिवाइड करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया। अब 1/2 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या था 2 tan इनवर्स x का, tan cos इनवर्स में चेंज करना था, 2 tan इनवर्स x का cos इनवर्स में फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स x का cos इनवर्स में आज ही पढ़ा हमने, क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर ये 1/2 ग्रेटर देन 0 तो है ही, ये आएगा प्लस क्या आएगा cos इनवर्स 1 माइनस 1/2 स्क्वायर 1/4 और 1/2 स्क्वायर 1/4, सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये है, तीनों डिफरेंट रेशो है, साइन इनवर्स cos इनवर्स tan इनवर्स, तो 3 वाला फॉर्मूला हमने किससे पढ़ा है बताइए आप, साइन इनवर्स में पढ़ा नहीं होता है फॉर्मूला, लेकिन बड़ी क्लास में या कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू हमने 3 वाला किसे पढ़ा है, ओनली tan इनवर्स से पढ़ा है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, तो आप तीनों को tan इनवर्स से चेंज कर लीजिए। कैसे करोगे, आज ही पढ़ा हमने, ट्रायंगल बना के, इसको एक ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल कैसे बनाओगे बेटा, ट्रायंगल में हमारे पास साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो ये आ गया हमारे पास, कितना आ गया 12/13, 12/13। अब इसका निकाल लीजिए, तो 169 माइनस 144 25 25 कितना आया 5। अब इसको tan इनवर्स से चेंज कर लीजिए, तो tan इनवर्स कितना देगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो 12/5। सिमिलरली सेकंड कर लीजिए भाई, इसको ऐसे, cos इनवर्स क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो 4/5। तो इसका रूट नाइन कर लीजिए भाई, 25 में 16 गया 9 9 रूट 3 आ गया, तो tan इनवर्स कितना आ गया हमारे पास, अरे पायरेशन से कर रहा हूं मैं ये, कभी इसमें भी कंफ्यूज होकर बैठ जाओ। तो tan इनवर्स कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 63/16। अब tan इनवर्स x प्लस y प्लस tan इनवर्स z, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, that is equal to formula of tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z। ठीक है, ऐसे इसमें करेंगे हम, इसकी राइट हैंड ले लेंगे, साइन इनवर्स को भी tan इनवर्स में चेंज कर देंगे, cos इनवर्स को भी tan इनवर्स में ट्रायंगल बना के फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y का। आके इसको भी tan इनवर्स में चेंज कर दोगे, इसको भी tan इनवर्स में, और tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y का फॉर्मूला कर दोगे। अब इसमें क्या करो बेटा, या तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाओ, क्या था 2 tan इनवर्स x का, अभी पढ़ा हमने, और tan इनवर्स में चेंज कर लो, 2 tan इनवर्स का tan इनवर्स में, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, तो 2 कैंसिल हो गया, क्या है tan इनवर्स, ये आएगा हमारे पास कितना आएगा 3/4, तो 4/3 आ जाएगा, 4/3
प्लस tan इनवर्स 1/7। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दोगे आप, फॉर्मूला अप्लाई करके उसको आंसर किस में आएगा, tan इनवर्स में, तो उसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक के जरिए sin इनवर्स में चेंज कर लोगे। यहाँ पर हम 2 से डिवाइड 2 सम प्लान नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि बाहर 2 नहीं 1/2 नहीं है, इसे ट्रायंगल बना के ही चेंज कर लोगे आप। ओके, तो ओके, थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ, बता लीजिए।